Welcome, my dear children. I know you always ready for learning. You are always interested to know. So, without delay, let us begin our learning activities. So, dear children, look at the picture. Now, listen to my questions. What do you see in the picture? What do you see in the picture? There are two characters on that picture. One is a bird, another is an animal, and you know what is the name of that bird? Yes, it is crow. Then the second one sitting before the crow, it is the frog. Nowadays, everywhere you can find the frog, because the rainy season is going on, and you can also find the frogs nearby your home. The next one, what are they doing? Closely observe them, look them. What are they doing? Do you think they are looking to each other? Yes, it seems as if they are looking to each other. Can you guess any other thing? If they are sitting before each other, then what they could be doing there? When you two friends sit in front of each other, what generally you do? Yes, you talk to each other, and surely the crow and the frog both are talking to each other. And go for the next question. Can you guess what are they talking about? What should be the topic they are taking there, talking to each other? Surely they belong to two different species. Surely they are boasting each other. They feel very proud and talking about themselves. So, let us take another nice story relating to these two. One is bird the crow and the animal frog, and today's story that you like most is the frog and the crow. Dear children, I am reading aloud. You must have your textbook before you. You can also go through, but listen to me very carefully, because listening is most important to understand a text. Therefore, you listen to me first, and the text is like this. A frog lived in a pond. The frog was big. No other frog in the pond was as big as him. This made him proud. Most of the time in summer, he lived inside water, but most of the time in winter, he lived outside the water. In water, he felt sad for the fishes. They had to live always inside water, summer or winter. When on land, he felt sad for other animals. They could not live in water. This made him still more proud. He was better than both fishes in water and animals on land. He could both swim and walk. He could jump well. He felt sad for animals that could only walk. What a sad thing! One could only walk and one could not jump. He said to himself, life will be really boring to live only in water or land, to walk or jump. Thus, the frog spent most of his time thinking about himself, how only he can live both inside and outside water, both walk and jump. I am better than both fishes and animals, he said to himself again and again. When rain came, he said
this louder. Croak, croak, croak. Listen, you fools, you fishes, you can't live on land, but I can croak, croak, croak. You fools, you animals, you can't jump, but I can. So, after listening to this part of the story, you might have gone through new words. Unless you know the meaning of the new words, it is very difficult on your part to understand the text, to understand the story. And without knowing those words, you cannot enjoy what matters really. Therefore, you look at the words and get the meaning. The first word is fill, and children, you know, fill is a verb and it has past tense. In present, it is FEEL, fill, and its past tense is FELT, felt. ଆଉ तार ओडिया अनुभव है अनुभव कला। ए फील शब्दटीर अर्थ है तार पास्ट टेंस होची फेल्ट और फेल्ट अर्थ होची अनुभव कला। नेक्स्ट वर्ड लिव, LIVE, लिव। लिव अर्थ है बास करिवा। जेमते आमे कहे आई लिव इन माय विलेज। वन्स अगेन आई लिव इन माय विलेज। कौन आम अर्थ बुझे जे मु गाँव रे बास करे। द नेक्स्ट वर्ड इज गुड। ए गुड वर्ड हूँ गोटे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव केतेबेले व्यवहार करा जाए तुम जान जितेबले आम जनकर गुण वर्णना करे। आम कहनी ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अर्थ हम कौन बुझे से जड़े भल पिला। जदि जन को आम जनकर कथा को गुण को वर्णना करता है आम गुड शब्दटी व्यवहार करता है। जदि दुई जनक मध्य आम तुलनात्मक भाव से गुण को वर्णना करने को जाए जे किए भल, ये दुई जनक भितर किए भल, से आम बेटर शब्दटी व्यवहार करता है। बुझिपारा गुड, बेटर, आ तार आउ गोटे रूप अच्छी बेस्ट। गुड टी हूँ पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, आउ बेस्ट है सुपरलेटिव फॉर्म। ये कहते एडजेक्टिव तीनोटी फॉर्म को। ताले दुई जनक दुई जनकर तुलना करने समय आमे बेटर शब्दटी व्यवहार करे। जेमिति ही इज बेटर देन आई, अर्थात मो ठारू से टिके भल। आमे जदि समस्त ठारू जन को आमे भल बोली कहिबा, जेमते आम क्लास भितर गोटे भल पिला अछि, आमे सेतबेले बेस्ट शब्दटी लगाई थाए। केमिति कहे ना रघु इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तापर देखिबा आउ गोटे वर्ड रियली, REALLY, रियली कहले सतरे बा वास्तव रे। बुझ पाला जेमते आमे कहबा रियली ही इज ए फाइटर, रियली ही इज अ फाइटर, सतरे बा वास्तव रे से जने योद्धा। से भली आउ गोटे शब्द अच्छी कैन, CAN, कैन रो अर्थ होची पारिबा। कौन से गोटे कार्यर दक्षता जहाँ पाखे थाए से सेतेबेले सेही कथाटी को आमे प्रकाश करने को हेले टू एक्सप्रेस दैट क्वालिटी वी यूज द वर्ब कैन। लाइक दिस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। दिस मीन्स व्हाट? आई हैव दैट एबिलिटी टू लिफ्ट। अर्थात मो पाखरे से पारिबा पणिया अच्छी ए बॉक्स टी को उठेबा पाई, ऊपर को उठेबा पाई। से भली आउ गोटे वर्ड अच्छी स्पेंड, एटी मध्य वर्ब, आर पास्ट टेंस भी अच्छी स्पेंट। स्पेंड, SPEND, स्पेंड, तार पास्ट टेंस है स्पेंट। यार अर्थ है बिताइला बा बिताइबा। आमे जेमती कहे जे ही स्पेंट द समर इन दिल्ली, ही स्पेंट द समर इन दिल्ली। आर अर्थ कौन आम बुझा जे दिल्ली रे समर सीजन टी को से बितेला।
से भली आउ गोटे वर्ड है हिमसेल्फ तार अर्थ होची से निजे निजे HIMSELF हिमसेल्फ तार अर्थ हम कौन बुझले से निजे निजे जदि कौन सी कार्य को जड़े निजे करे आमे से स्थान रे आमे हिमसेल्फ लगे थाए जमती आमे कहे he made this doll himself he made this doll himself अर्थात से अन्यर साहाय्य न नहीं से निजे निजे से कंठेटी को तैयारी करछि से भले आउ गोटे वर्ड होछि स्टिल STILL स्टिल रो अर्थ होछि तथापि अर्थात जहाँ पर्यंत है नहीं आउ गोटे वर्ड आम पे नुआ अच्छी क्रोक CROAK ए क्रोक शब्दटी बेंग मान उद्देश्य ही व्यवहार करता है कारण बेंग राब को क्रोक कह जाए बुझिपारा जमती विभिन्न पशु मानकर शब्द को आवाज को कौन कह जाए विभिन्न इंग्लिश वर्ड रे आमे प्रकाश करता है से भली बेंग राब को आमे कौन कही थाए क्रोक CROAK आउ गोटे नुआ शब्द होची पॉन्ड POND पॉन्ड तुम्हें चित्रटी को देख निश्चित रूप अति सहज यार अर्थ बुझीपर एटी हूँ पोखरी देखला तुम मान भली कि छोट छोट पिला माने पोखरी जंप करके स्विम करुँच पहरुंच गाधौंट ताले पॉन्ड को पोखरी कह जाए ये चित्रटी को देख ये चित्रटी देखिले देख दुईट बास्केट अच्छी से बास्केट भितर किसी जिनस अच्छे आ गोटे जगार किसी बाहर पड़ी एठी जो वर्डटी आम मान अच्छी सेटा होची आउटसाइड OUT आउटसाइड तार अर्थ है बाहर तुम देख जो बास्केट रो बाहर किसी पत्र पड़ी देखिपारा से पत्र गुड़ाक कौन है ना आउटसाइड द बास्केट बुझिपारा सेमती आउ गोटे अच्छी इनसाइड ए चित्र देख जो पत्र गुड़िक बास्केट भितर अच्छी INSIDE इनसाइड रो अर्थ है भितरे आउ गोटे वर्ड देख ये PROUD प्राउड ये शब्दटीर अर्थ होची गर्वी बा गर्व ताले एठी देखो चित्रटी को देख ये भली अवस्था आम केतेबेले प्रकाश करथाए जेतेबेले आम पाखरे कौनसी भय भाव न थाए एवं आम पाखरे बहुत कॉन्फिडेंस थाए सेतेबेले आम कौन निजको प्राउड फील करथाए आउ गोटे वर्ड है बोरिंग चित्रटी देखले तुम बुझिपार बोरिंग अर्थ कौन ना जार इच्छा नहीं बा विरक्तिकर यही शब्दटर अर्थ होची कौन विरक्तिकर डियर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स नाउ it will be easy for you to understand the text. So, let us the text bit by bit. A frog lived in a pond. The frog was big. No other frog in the pond was as big as him. गोटे पोखरी रे गोटे बेंग बास करथिला आ से बेंगटी बहुत बड़ थिला आकार रे बहुत बड़ थिला तार भली आउ कौन सी बेंग एते बड़ बेंग पोखरी रे नथिले दिस मेड हिम प्राउड जदि जड़े समस्त ठारू देखा बड़ शक्तिशाली मन करे ताले से कौन अनुभव करिवो दिस मेड हिम प्राउड से निजको गर्व अनुभव करथिला मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर ही लिव्ड इनसाइड वाटर ग्रीष्म ऋतु रे अधिकांश समय से कौन करथिला पोखरी पानी भितरे रहुथिला बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर ही लिव्ड आउटसाइड द वाटर बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर ही लिव्ड आउटसाइड द वाटर किंतु शीत ऋतु आसिले से कौन करथिला अधिकांश समय बाहर रहुथिला कहले कोट रहुथिला माटी उपरे रहुथिला इन विंटर ही फेल्ट सैड फॉर फिशेस शीत ऋतु रे से कौन करे ना भारी दुख अनुभव करथिला माछ मानक पाइंकी कारण से पानी भीतर रहु नथिला शीत दिन ठंडा हुए तेणु से ठंडा को सहे करि परनी ताकू भल लागेनी सेतिपई से कौन करे माटी ऊपर को आसी जाए माटी ऊपर रहे टिके गरम पाइबा पाए किंतु माछ मान तो पानी छाड़ी आसी परिबेनी
they could not live outside water. ସେଥିପାଇଁ he felt sad for fishes. They had to live always inside water, summer or winter. He felt proud as well. ମାଛ ମାନେ को ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ, ଚାहे ସେ ସମର ସିଜन हो और विंटर सीजन. यही कथा भाविकी he felt proud as well. पुणी थे से आहरी अहंकारी टिके हो गला. He can live both in water and land. When he thought he could live both in water and land. से भी जानी पारला जे से होची केवल गोटिए जीव पोखरी भितरर जे पानी रे रही परिबो एवं माटी रे मध्य वास करि परिबो. When on land he felt sad for other animals. जेतेबेले से भूमि पर रहुतला माटी रे रहुतला सेतेबेले से अन्य पशु मानक प्रति पाई भारी दुखित हेउतला. They could not live in water. कारणटा कोन? Because other animals cannot live inside water. अन्य पशु बा अन्य प्राणी पक्षी एमाने कोन पानी भितर रही परिबे? माछ को छाडला पानी भितर केही रही परिबेनी. सेथिपई से एनिमल मानक प्रति भारी दुखित थिला. This made him still more proud. He was better than both fishes in water and animal on land. और यही कथाटी कि से भाभी भाभी आहुरी अहंकारी हो गला. कहीं ना he was better than कहले से अन्य मानक अपेक्षा कौन अन्य मान कहले किए both fishes and animals माछ एवं पशु मानक ठारू उभयंक ठारू से भल अवस्था थिला. कहीं कहल ना से हूँ एकमात्र प्राणी जे माटी एवं पानी भितर रही पारुथला. किंतु माछ पानी बिना माटी रे रही परिबो नहीं कि पशु माने माटी छाड़ीदेले भूमि छाड़ीदेले से माने पानी भितर मध्य रही पारिबे नहीं. यही कथा भाविकी से आहुरी अहंकारी हो गला. He could both swim and walk. से उभय पहरी पारुथला एवं माटी ऊपर चली भी पारुथला. He could jump as well. से मध्य जंप कले तुम जानिଛ ऊपर को कूदा मारिबा डेइबा से डेइ भी पारुथला. He felt sad for animals that could only walk. से पशु मानक पई भारी दुखित हला. कहीं कहलो पशु माने केवल जहाँ माटी ऊपर चली पारुथिले. Animals cannot swim in water. What a sad thing. One could only walk and could not jump, he said himself. आउ से कौन कला बड़ दुखित अनुभव करी निजु निजे कहला कहला जड़े चली पारे किंतु डेई पारिबो नहीं. Life will be really boring to live only in water or land, to walk or jump. से मन मन यह अनुभव कला जे लाइफ जीवन भारी विरक्तिकर. कौन विरक्तिकर? टू लिव ओनली इन वाटर और लैंड. खाली जदि जड़े गोटे स्थान रे बास करे से पानी रे हो बा भूमि रे हो ताहा जीवन ताहार जीवन भारी विरक्तिकर. कहीं ना ताहा चलवा एवं डेइबा पई उपयुक्त स्थान नुहे. Thus the frog spent most of his time thinking about himself, how only he can live both inside and outside water. से केवल यही कथाटी को भावी भावी कौन कला केवल भावुला जो मन भितर भावुला जे से हूँ एकमात्र जे बाहर एवं भितरे पानी भितरे बास करि पारे. बोथ वॉक एंड जम्प. से एकाकी चली पारे एवं डेई पारे. आ सेतिबई से कहूतला आई एम बेटर देन बोथ फिशेस एंड एनिमल्स. आ मु होची एनिमल एवं फिशेस मानक ठारू बहु गुण रे भल. व्हेन रेन केम ही सेड दिस लाउडर, क्रोक क्रोक क्रोक, लिसन यू फूल्स, यू फिशेस, यू कांट लिव ऑन लैंड. आ जेतेले वर्षा हेउतला सेतेबेले से कोन क्रोक क्रोक तार से जो राब बेंग राब से करी अन्य मान कौन कहूतला कहला तुमे सब मस्ते बोका माछ तुमे माने भारी बोका तुमे माने केबे हेले भूमि उपरे बास करि परिबो नाही. बट आई कैन क्रोक क्रोक, यू फूल्स, यू एनिमल्स, यू कैन जंप बट आई कैन. एवं से पशु मान को देखि कहूतला पाटी करी कहूतला कौन कहूतला जे तुमे पशु माने मध्य बोका तुमे माने केबे पानी रे बास करि परिबो नाही, तुमे केबे जंप भी करि परिबो नाही किंतु मु करि परिबी. बट आई कैन जंप. गल्पर स्टोरीर एई भाग
आज पई थिला तुम मैंने वर्तमान गल्पटी को शुणिल भल भाव में बुझीपार तुम मान किसी प्रश्न अच्छी हु आर देयर इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी स्टोरी रो कहानी रो ए पर्यंत केतोटी चरित्र अच्छे एंड हु आर दे surely they are who they are the frog the fish the animal where did the frog live the frog lived in a pond where did it live in winter it lived in on land how did it feel in water it felt proud in water why was the frog proud because he could live in water and on land there was a frog lived in a pond it was a big frog he felt proud because it could live in water and on land it could swim in water like fishes and jump on land like animals this made him still more proud therefore he told fishes and animals fool dear children we got a lesson from this part of the story and do you know what is the moral of this part never be proud of your possession never be proud of your possession अर्थात निज दखल रे थिबा जिनिस पई गर्व करिबा उचित नुहे नेवर बी प्राउड ऑफ योर पोसेशन कौन बुझिले तार अर्थ निज दखल रे थिबा जिनिस पई आम पाखरे थिबा कोनसी गोटे पदार्थ पई जहाँ अन्य पाखरे नथिबो सेथि पई आमे गर्व अनुभव करिबा उचित नुहे पिला माने यू हैव एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी as you listen so patiently and learn new things therefore a big thanks to all of you.